Good morning, students. This session is for class 8th, and today we are going to complete question answer of chapter 11, that is force and pressure. So let's see the questions. Student, if you have book, please see questions from your book, because the same questions are given in your NCERT book, so you can use your book to see the questions. If you don't have book, so the questions are also mentioned here, but if you have written your answers already, you should try to match the answers with the answers given here. Okay, some of the students have completed the answers when we have discussed that question and answers during the theoretical classes. So if you wrote the answers by yourself, try to match. If that is correct, good. If there is any difference or you feel that any confusion related to the answer, try to match, or we can discuss with each other. Okay, so that will help you to write the correct answer of the questions. So let's see the first question of this chapter, which we have already discussed, but we are going to show you on the screen, and you, if there was any problem, you can write from here. Okay, so you can see the first question is, give two examples each of situation in which you push or pull to change the state of motion. So the solution is, this is very simple question. You have to write your daily life experiences of push and pull. So give two examples of push and two examples of pull. So let's see, here there are so many real life examples of push and pull. The first one is, a car at rest is pushed to move which change its state of motion. So कोई कार खड़ी है, उसको पुश करके आप उसमें थोड़े बहुत मोशन में उसको ला सकते हैं, तो उसके स्टेट ऑफ मोशन को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं. सेकेंड, द ग्राउंड स्टाफ पुशेज अ रोलर इन द ग्राउंड टू लेबल द सरफेस. जो ग्राउंड स्टाफ होते हैं वो रोलर को पुश करते हैं और जो रोड होता है उसको लेबल करने की कोशिश करते हैं. यहाँ पे देख सकते हैं आप. इन दिस हियर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ पुल. अब यहाँ पे पुल के एग्जाम्पल देखते हैं. द डोर इज पुल्ड टू ओपन द रूम विच चेंजेस द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द डोर. यहाँ पे देखिए, द डोर इज पुल्ड टू ओपन द रूम विच चेंजेस द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द डोर. डोर को पुल करके आप स्टेट ऑफ मोशन उसका चेंज करते हैं. ग्रेप्स इज पुल्ड फ्रॉम अ बंच ऑफ ग्रेप्स टू प्लक इट विच चेंजेस स्टेट ऑफ मोशन. तो यहाँ पे देख सकते हैं, जो फ्रूट है अगर वो किसी ट्री में है, उसको पुल करके आप उसको ब्रेक करते हैं, तो वहाँ भी आप उसकी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करते हैं. ठीक है. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज डन. If you want to write this answer, so the question is given here. Pause the video and complete the answers. This is the answer. Okay, so you can pause the video and you can note it down in your copy. Now we are ready to complete second. Here you can see the second question. Give two examples of situations in which applied force causes a change in shape of object. तो यहाँ पे देखिए, ऐसे दो सिचुएशन बताना है जिसमें कि फोर्स अप्लाई करने पे वो ऑब्जेक्ट का शेप चेंज करता हो. गिव टू एग्जांपल्स ऑफ सिचुएशन इन विच अप्लाइड फोर्स causes a change in the shape of an object. So you can see here, the squeezing an orange changes the shape of orange. A ball of dough is rolled which changes the shape of the dough. तो यहाँ पे देख सकते हैं, ऑरेंज को स्क्वीज करने पे वो अपना शेप चेंज करता है. ऐसे ही डो है, डो को रोल करने पे वो चपाती के फॉर्म में बन जाता है. तो यहाँ पे शेप दोनों कंडीशन में चेंज हो रही है.
ठीक है। और भी कंडीशंस हैं, आपके पास एक रबर बॉल है, उसको आप प्रेस करते हैं तो उसका शेप चेंज हो जाता है, स्फीयर से कुछ और बनने लगता है, इरेगुलर शेप का हो जाता है। क्ले है, क्ले के किसी शेप का है, उसके ऊपर आप थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे उसका शेप भी चेंज हो जाएगा। तो और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। You can write the examples according to your choices. It is not necessary that the answers which are given here is only mandatory to write. Okay, so you can write according to the choices. Now we are ready to, if you want to write the answer of question number 2, this is shown here, and you can pause the video and you can write down. यहाँ तक है इसका आंसर, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, ये क्या है, टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ वेल वी हैव टू, यहाँ पे आपको फिल करना है, अ चार्ज बॉडी एन अनचार्ज बॉडी, टू रिमूव लोडेड ट्रॉली वी हैव टू मूव लोडेड ट्रॉली वी हैव टू। यहाँ पे डी देखिए, द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट, यहाँ फिल करना है द नॉर्थ पोल। तो यहाँ पे आपको आंसर्स क्लियर हो गए होंगे। फर्स्ट में क्या होगा, यस आप क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है, अगर ज़रा सा भी आप सोच रहे हैं। टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल वी हैव टू पुल, राइट। अ चार्ज बॉडी अट्रैक्ट एन अनचार्ज बॉडी, टू मूव अ लोड ट्रॉली वी हैव टू पुश और पुल, दोनों हो सकता है यहाँ पे। द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट रिपेल द नॉर्थ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट। तो ये हो गया आंसर। अब इन आंसर्स को देख लेते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशंस लिखे हुए हैं। यहाँ पे सभी यहाँ पे देख सकते हैं आंसर ये है, टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ वेल वी हैव टू पुल द रोप। तो फर्स्ट लिख लिया आपने। एक्सप्लेनेशन देखिए, टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ वेल वी हैव टू पुल एट द रोप फॉर अपवर्ड मोशन ऑफ द वाटर। तो ये हो गया। बी देखिए, अ चार्ज बॉडी अट्रैक्ट एन अनचार्ज बॉडी टुवर्ड्स इट। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अ चार्ज प्रॉपर्टी हैज़ प्रॉपर्टी टू अट्रैक्ट अनचार्ज बॉडी टुवर्ड्स इट। सी है, टू मूव अ लोडेड ट्रॉली वी हैव टू इधर पुश और पुल। यहाँ देखिए आंसर, टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ट्रॉली वी मस्ट अप्लाई सम फोर्स बाय पुशिंग और पुलिंग द लोडेड ट्रॉली वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द पुली। तो ये हो गया आपका। अब इसको वीडियो को पॉज करके इन आंसर्स को आप लिख सकते हैं अगर आपने नहीं लिखा है। डी देखिए, डी है, द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट रिपेल्स द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट another magnet, some polarity poles of magnet repel each other। सेम पोलैरिटी होगी तो क्या होगा, रिपल्सन होगा, और पोलैरिटी अगर अपोजिट है तो वहाँ पे अट्रैक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन आर्चर स्ट्रेचेज हर बो वाइल टेकिंग एम एट द टारगेट, सी देन रिलीज द एरो which belong to move towards the target. Based on this information, fill up the gap following statement using the following terms। तो यहाँ पे देख सकते हैं इन चीज़ों का यूज़ करके आपको फिल करना है। मस्कुलर फोर्स है, कांटेक्ट है, नॉन कांटेक्ट है, ग्रेविटी है, फ्रिक्शन है, शेप है, अट्रैक्शन है। इन चीज़ों को यूज़ करके आपको इन क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे लिखने हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्या है,
तो यहाँ पे आपको फर्स्ट दिख रहा है, टू स्ट्रेच द बो द आर्चर अप्लाई ए फोर्स दैट कॉजेज द चेंज इन इट्स, तो यहाँ पे आपको फिल करना है। सेकेंड है द फोर्स अप्लाइड बाय द आर्चर टू स्ट्रेच द बो इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो यहाँ फिल करना है। द टाइप ऑफ फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द एरो इज एन एग्जाम्पल ऑफ फोर्स, यहाँ फिल करना है। While the arrow moves towards the target, the force acting on it are due to, यहाँ फिल करना है, and that due to यहाँ फिल करना है। तो इसको आप फिल करेंगे। आंसर देखते हैं। सोल्यूशन ए में है, टू स्ट्रेच द बो द आर्चर अप्लाई अ फोर्स दैट कॉजेज चेंज इन इट्स शेप, तो यहाँ पे शेप चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे शेप फिल करना है। आप इन आंसर इस वीडियो इस पार्ट को यहीं पे पॉज करके आप चीज़ों को नोट डाउन करते चले जाइए। क्वेश्चंस आप बुक से भी लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखा है तो ऊपर पोर्शन में पॉज करके आप लिख सकते हैं। एक्सप्लेनेशन देखिए, द बो इज स्ट्रेच्ड, मस्कुलर फोर्स एक्ट एंड विच चेंजेस द शेप, तो यहाँ पे देखिए मस्कुलर फोर्स जो लगता है वही इसके शेप को चेंज कर देता है। ठीक है, बी देखते हैं, बी में क्या है, द फोर्स अप्लाइड बाय द आर्चर टू स्ट्रेच द बो इज एन एग्जाम्पल ऑफ मस्कुलर फोर्स, तो जो फोर्स अप्लाई करता है आर्चर वो एग्जाम्पल है मस्कुलर फोर्स का, यहाँ पे फिल करेंगे। अब मस्कुलर फोर्स क्या है देखिए, मस्कुलर फोर्स हेल्प द आर्चर टू स्ट्रेच द बो, जो मस्कुलर फोर्स है वो हेल्प करता है आर्चर को बो को स्ट्रेच करने में। सी देखते हैं, द टाइप ऑफ फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द एरो इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, तो यहाँ पे जो फोर्स है, द टाइप ऑफ फोर्स फॉर अ चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एरो इन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। अब कॉन्टैक्ट फोर्स चेंजेस द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एरो, जो कॉन्टैक्ट फोर्स है वही एरो के स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करता है। एंड डी में while the arrow moves towards its target the force acting on it are due to gravity and friction of air, तो यहाँ पे लास्ट जो पार्ट है उसमें आप ग्रेविटी और फ्रिक्शन ऑफ एयर फिल करेंगे। एज आर्चर रिलीजेज द एरो फ्रिक्शन फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ऑन द एरो, तो ये दोनों ही फोर्स वहाँ पे एक्ट होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इन द फॉलोइंग सिचुएशंस आइडेंटिफाई द एजेंट exerting the force and the object on which it act, state the effect of the forces in each case, तो यहाँ पे देखिए कुछ केसेस गिवन है, यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन से फोर्स और किस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ए में देखिए, स्क्वीजिंग अ पीस ऑफ लेमन बिटवीन द फिंगर्स टू एक्सट्रैक्ट इट्स जूस, तो यहाँ पे देखिए अगर किसी लेमन को स्क्वीज कर रहे हैं तो कौन सा फोर्स लगाएंगे और फोर्स किस ऑब्जेक्ट पे लगेगा। तो यहाँ पे सेकेंड देखिए है, टेकिंग आउट पेस्ट फ्रॉम टूथपेस्ट ट्यूब। ठीक है, ये दो पार्ट हो गए। इन सभी के आंसर्स आप लिखना शुरू करिए, देखिए कि आप सही लिख पा रहे हैं या नहीं। सी देखिए, अ लोड सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्प्रिंग वाइल इट्स अदर एंड इज ऑन द हुक फिक्स टू अ वॉल, तो ये थर्ड हो गया। और फोर्थ देखिए, एन एथलीट मेकिंग अ हाई जंप टू क्लियर द बार एट द सर्टेन हाइट, तो ये 4 केसेस हैं। इन 4 केसेस में आपको ढूंढना है कि फोर्स कौन सा लग रहा है और किसके ऊपर। तो यहाँ पे देखिए आंसर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, वीडियो को पॉज करके आप आंसर लिख सकते हैं यहाँ से। ए देखिए, मस्कुलर फोर्स इज अप्लाइड बाय द फिंगर ऑन द लेमन टू स्क्वीज इट टू एक्सट्रैक्ट द जूस, मस्कुलर फोर्स चेंज द शेप ऑफ द लेमन, तो यहाँ पे जो मस्कुलर फोर्स है वही लेमन के शेप को चेंज कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट का आंसर है, इसको आप कंप्लीट कर लीजिए। सेकेंड देखते हैं, मस्कुलर फोर्स इज अप्लाइड ऑन द टूथपेस्ट, जी बिल्कुल हाथ से अप्लाई करेंगे मस्कुलर फोर्स। ट्यूब टू एक्सट्रैक्ट पेस्ट फ्रॉम द ट्यूब, मस्कुलर फोर्स चेंजेस द शेप ऑफ टूथपेस्ट, यहाँ पे मस्कुलर फोर्स जो है वही
टूथपेस्ट के शेप को चेंज करता है। तो यहाँ पे ए और बी आपका क्लियर हो जाता है। सी देखिए, स्प्रिंग गॉट एक्सटेंडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू सस्पेंडेड लोड विच चेंजेस द शेप ऑफ द स्प्रिंग। तो यहाँ पे सी केस में जो स्प्रिंग है जो कि किसी हुक से लटक रही है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक्सटेंड होती है, और उस पर जो लोड सस्पेंडेड है वही उसके शेप को मत चेंज करता है वहाँ पे। यहाँ पे देख सकते हैं स्प्रिंग गॉट एक्सटेंडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू सस्पेंडेड लोड विच चेंजेस द शेप। डी देखते हैं, एथलीट एक्सर्ट मस्कुलर फोर्स ऑन द ग्राउंड बाय हिज फीट। तो यहाँ पे देखिए जो एथलीट है वो मस्कुलर फोर्स अप्लाई करता है ग्राउंड पे, विच हेल्प टू जंप द बार, जो कि उसको हेल्प करता है जंप द बार, एंड इट चेंजेस द स्टेट ऑफ मोशन, जिससे कि उसके स्टेट ऑफ मोशन चेंज होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ब्लैक स्मिथ हैमर अ हॉट पीस ऑफ आयरन while making a tool. How does the force due to hammering affect the piece of iron? तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर सोल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है। When a blacksmith hammers a hot piece of iron, he or she exert muscular force while hammering. तो जब वो हैमरिंग करता है, हथौड़े से जब पीटता है उसी को हैमरिंग बोलते हैं। तो जब वो हैमरिंग करता है तो मस्कुलर फोर्स अप्लाई करता है। ड्यू टू दैट मस्कुलर फोर्स शेप ऑफ आयरन पीस कुड बी चेंज। तो उस मस्कुलर फोर्स की वजह से जो शेप है आयरन पीस का वो चेंज हो सकता है। तो ये आप क्वेश्चन नंबर 6 तक आपने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब 7 पे आते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन 7, एन इन्फ्लेटेड बैलून वॉज प्रेस्ड अगेंस्ट अ वॉल after it has rubbed with a piece of synthetic cloth. Now it was found that the balloon stick to wall. What force might be responsible for the attraction between the balloon and the wall? तो यहाँ पे देख सकते हैं एक इन्फ्लेटेड बैलून है। इन्फ्लेटेड बैलून मीन्स कि उसमें जो है एयर ब्लो किया हुआ है, उसको वॉल की तरफ प्रेस किया गया है। उससे पहले उसे सिंथेटिक क्लॉथ से रब किया है। इट वॉज फाउंड दैट द बैलून स्टिक टू द वॉल। हम लोग देखते हैं कि बैलून जो है वॉल से स्टिक कर जाता है। तो क्वेश्चन है कि कौन से फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं इस टाइप के अट्रैक्शन के लिए। तो यहाँ पे सोल्यूशन देखिए, दिस इज द सोल्यूशन। व्हेन इन्फ्लेटेड बैलून इज रब्ड विथ सिंथेटिक क्लॉथ, it gets charged and charged body attract uncharged body। तो यहाँ देख सकते हैं it gets charged, ये चार्ज हो जाता है, और कोई चार्ज बॉडी जो है ये चार्ज बॉडी अट्रैक्ट करती है किसी अनचार्ज बॉडी को। सो इन्फ्लेटेड बॉल विल स्टिक द वॉल while pressing it against the wall, and the force between ball and the wall is an electrostatic force। तो यहाँ पे देख सकते हैं जब कि बैलून को रब करते हैं सिंथेटिक क्लॉथ से तो वो जो है चार्ज हो जाती है, और कोई चार्ज ऑब्जेक्ट जो है वो किसी अनचार्ज ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे जब बॉल जो बैलून है जो बॉल है उसको जब हम लोग वॉल की तरफ ले जाते हैं तो वहाँ पे दोनों के बीच अट्रैक्शन हो जाता है। इस टाइप के फोर्सेस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसमें कि एक ऑब्जेक्ट चार्ज है और दूसरा अनचार्ज है तो दोनों के बीच अट्रैक्शन फोर्स लगता है, और यहाँ पे इस फोर्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे देख सकते हैं, नेम द फोर्स एक्टिंग ऑन अ प्लास्टिक बकेट containing water held above the ground level in your hand. Discuss why the force acting on the bucket do not bring a change in its state of motion। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है, पूछा जा रहा है क्वेश्चन की
कौन सा फोर्स लगता है जब आप किसी बकेट में वाटर है उसको अपने हाथ में लेके होल्ड किए रहते हैं, ठीक है। डिस्कस वाई द फोर्स एक्टिंग ऑन द बकेट डू नॉट ब्रिंग चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, और ये बकेट को मोशन स्टेट ऑफ मोशन में क्यों नहीं ला पाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर देखिए, when the bucket is held above the ground, two forces act on it. First one is the muscular force, acts it in upward direction, and the gravitational force act downward direction. Both forces are of same magnitude but opposite in direction, so there is net zero force on the bucket, so there won't be any change in the state of motion. तो यहाँ पे देखिए, ये कोई ऑब्जेक्ट अगर है, इस पे ऊपर भी फोर्स लगा है और उतना ही फोर्स नीचे लगा है, तो इस पे नेट फोर्स जीरो लगा है, अभी इसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए, जब बकेट है इसमें ऊपर की तरफ मस्कुलर फोर्स लगाते हैं हम लोग और नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स अपने आप लगता है। अब ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, जब ये दोनों फोर्स इक्वल हो गए तो इस पर नेट फोर्स जीरो हो गया। अब जीरो नेट फोर्स है तो स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं होगा। तो ये है इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, अ रॉकेट हैज़ बीन फायर्ड अपवर्ड टू लॉन्च अ सैटेलाइट इन ऑर्बिट, नेम द टू फोर्सेज एक्टिंग ऑन द रॉकेट इमीडिएटली आफ्टर लीविंग द लॉन्च पैड। तो एक बार फिर से देख लीजिए क्वेश्चन, अ रॉकेट हैज़ बीन फायर्ड अपवर्ड to launch a satellite in its orbit, name the two forces acting on the rocket immediately after leaving the launch pad। तो आपको बताना है कि जब ये लॉन्च पैड को लीव कर रहा होगा तो इस पर कौन कौन से दो फोर्स वर्क कर रहे होंगे जल्दी से जब ये। तो अब देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, आप यहाँ से नोट भी कर सकते हैं। The rocket is launched in the direction against the gravity, so gravitational force will act on the towards the earth, and the other force is force of friction will be there due to the earth's atmosphere against the direction of the motion। तो क्योंकि लॉन्चिंग के जस्ट बाद पूछा हुआ है, इमीडिएटली द लॉन्चिंग का मतलब है, तो इसका मतलब वो अर्थ की ग्रेविटेशनल जो फील्ड है उसके अंदर ही पूछ रहा है। तो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड या आप एटमॉस्फेयर बोल सकते हैं, उसके अंदर ही पूछ रहा है। तो अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर जब है रॉकेट तो उस पर एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा जो अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, ठीक है, और दूसरा एयर का फ्रिक्शन। हमें पता है कि एयर भी फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करता है। तो जब रॉकेट एटमॉस्फेयर से पास करेगा तो उस पर दो फोर्सेस लगते हैं, एक तो अर्थ का ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन और दूसरा एयर फ्रिक्शन। ये दोनों ही फोर्स रॉकेट के मोशन को अपोज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये दोनों ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में रॉकेट के मोशन के लगते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, व्हेन वी प्रेस द बल्ब ऑफ अ ड्रॉपर with its nozzle kept in water, air in the dropper is seen to escape in the form of bubbles, ठीक है। Once we release the pressure on the bulb, the water gets filled in the dropper. The rise of the water in the dropper is due to। तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन है कि क्वेश्चन एक बार फिर से आप रीड कर लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे, when we press a bulb of dropper with nozzle kept in water, air in the dropper is seen to be escape in form of bubbles, ठीक है, बबल के फॉर्म में वो निकलते हुए दिखती हैं। यहाँ देखिए, once we release the pressure on the bulb, एक बार बल्ब से प्रेशर को रिलीज़ करते हैं, then water gets filled in the dropper, तो वाटर इस ड्रॉपर के अंदर फिल्ड हो जाती है। the rise of water in dropper is due to, तो
ड्रॉपर के अंदर जो वाटर का राइज है वो क्यों होता है। यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं। फर्स्ट दिया हुआ है प्रेशर ऑफ द वाटर, वाटर प्रेशर की वजह से। सेकंड है ग्रेविटी ऑफ द अर्थ की वजह से। थर्ड है शेप ऑफ द रबर बल्ब की वजह से। और डी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से। तो यहाँ पे सलूशन दिख रहा है, आप चाहे तो इसको, वैसे आपने पहले ही कर लिया होगा, लेकिन आप इसको लिख लीजिए, विद एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है यहाँ पे। एज एयर इन द ड्रॉपर escape फ्रॉम द बल्ब, water gets filled in the bulb due to the atmospheric pressure on water surface. Atmospheric pressure applied force on water surface. तो यहाँ पे देख सकते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो अप्लाई करता है। यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई फोर्स ऑन द वाटर सरफेस। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, किसकी वजह से, वाटर उसके अंदर फिल्ड हो जाता है। तो ये है आंसर्स सारे क्वेश्चंस के आपके एक्सरसाइज के। यहाँ पे हम एक बार सारे को दिखा देते हैं, आप चाहें तो उसको नोट करते जाएं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आप वीडियो को यहाँ पे पॉज करेंगे और लिख लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर भी ऊपर दिया हुआ है, एक साथ दोनों को दिखाते हैं। अब देखिए इस कंडीशन में वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर लिख सकते हैं। इसी के साथ आप 7 और 6, तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करके आप क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 के सॉल्यूशंस लिख सकते हैं, ठीक है। विजिबिलिटी क्लियर है। इस कंडीशन में वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में 4 पार्ट है, A B C D, तो इन सभी के आंसर्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर्स, ठीक है। ओके, इस केस में आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए ABCD जो दिया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर्स हैं, 3A 3B 3C एंड 3D। तो यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर्स लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं साथ में क्वेश्चन भी, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 और इसके आंसर्स, ठीक है। और इस केस में आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के आंसर्स इजीली लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को साथ में लिख सकते हैं अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं है। तो आई होप कि आप सभी ने चैप्टर को तो अच्छे से पढ़ा ही था, उसके साथ साथ इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। जिन्होंने नहीं कंप्लीट किया है उनके लिए ये वीडियो है, इस वीडियो में आप सुन भी सकते हैं और साथ में स्क्रीन पे सारे क्वेश्चंस और उनके आंसर्स गिवन हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप स्क्रीन से वीडियो को पॉज करके आंसर्स को आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। तो इन आंसर्स को लिख लीजिए, कॉपी कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट सेशन से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप कुछ और आंसर लिख सकते हैं वो भी अच्छी बात है, बट उसको डिस्कस हम लोग ज़रूर करेंगे। हो सकता है वो सही हो, बहुत अच्छी बात है। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसको आपको बताया जाएगा, ओके।
So thank you students for joining this session, and we will start our next chapter from tomorrow. So try to revise this chapter because revision is very important to understand the concept in more deep way. Okay, तो आप रिवाइज़ करते रहिए. आप जितनी बार रिवाइज़ करेंगे आपको उतना ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे. ठीक है. तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन.